is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the master of all mankind. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank my dear teacher for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Muhammad Usman, roll number 4. I am from BS Zoology third semester. Today I am going to discuss about role of photosynthetic pigments. In the end, you will be able to understand what are photosynthetic pigments, kinds of photosynthetic pigments and their role, light, the driving energy, and spectrophotometer. So, starting with what are photosynthetic pigments? Pigments are the substances that absorb visible light. Their range will be from 380 to 75 nanometer. Different pigments absorb different light of different wavelengths, and the wavelength that are observed become disappear. मीन्स जिन कलर्स की वेवलेंथ को वो ऑब्जर्व करते हैं वो कलर डिसअपियर हो जाते हैं, और जिन कलर्स की वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं. These pigments are also known as accessory pigments or chloroplast pigments because these pigments are mostly present on the chloroplast of plants. Then हम डिस्कस करते हैं kinds of pigments. On the chloroplast, thylakoid membranes contain several kinds of pigments. Number one, chlorophyll. Chlorophyll are the main photosynthetic pigments, and number two, carotenoids. Other accessory photosynthetic pigments present in the chloroplast include yellow and orange to red to orange carotenoids. Carotenoids are mostly इनका कलर येलो या रेड से ऑरेंज होता है. कैरोटीन्स और xanthophylls ये दो टाइप्स हैं कैरोटीनॉइड्स में. Carotenes are mostly red to orange in color, while xanthophylls are yellow to orange. These observe the light and utilize that light energy for photosynthesis. Then हम इनको मजीद elaborate करके देखते हैं कि what are chlorophylls and what are cannabinoids. Chlorophylls. Chlorophyll, as we will discuss that chlorophylls are the main photosynthetic pigments. These are also known. These are known many different kinds of chlorophylls. Chlorophylls A, B, C, and D are found in eukaryotic photosynthetic plants and algae, while the chlorophylls that are present in photosynthetic bacteria are mostly known as bacteriochlorophylls. Chlorophyll observe mainly violet blue and orange red wavelengths. Green, yellow, and indigo wavelengths are least observed by chlorophylls. Means green, yellow, and indigo lights are reflected or transmitted by chlorophylls, and these colors are adopted by chlorophylls. Therefore, we know as leaves are mostly green, darken green in color. Chlorophylls are insoluble in water but soluble in organic solvents such as carbon tetrachloride and alcohol. यहाँ पे आपको क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है. आगे हम इस स्ट्रक्चर को मजीद डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. Chlorophyll molecules has two main parts. First one hydrophilic head and second one hydrophobic hydrocarbon tail. हाइड्रोफिलिक हेड में इसको डिस्कस करते हैं तो आपको साथ में डायग्राम भी नजर आ रही है. तो इसको मजीद देखते हैं कि हेड इज फ्लैट, स्क्वायर एंड लाइट ऑब्जर्विंग. The head is complex porphyrin ring which is made up of four joint small pyrrole rings composed of carbon and nitrogen atoms. सेंटर में आप देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम एटम है और उसके चारों कॉर्नर पे नाइट्रोजन और साथ में कार्बन अटैच हैं, और इनको पोरफायरिन रिंग कहते हैं. और मैग्नीशियम एटम आप देख रहे हैं, यही मैग्नीशियम एटम जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही होता है, लेकिन सेंटर में मैग्नीशियम की रिप्लेसमेंट हो जाती है आयरन के साथ. Heme portion of hemoglobin is also a porphyrin ring but containing an iron atom instead of magnesium atom in the center. ये साथ में आप देख सकते हैं कि ये पायरोल चार पायरोल रिंग्स हैं स्मॉल कॉर्नर पे. सेंटर में मैग्नीशियम एटम है और ये पूरा स्ट्रक्चर पोरफायरिन रिंग कहलाता है क्योंकि ये मेन होता है लाइट की ऑब्जर्व करने में.
देन हम देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल इज लॉन्ग एंड एंचरिंग, ये साथ में इसका स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच्ड टू वन ऑफ पायरोल रिंग ऑफ हेड पोर्शन ऑफ क्लोरोफिल, और इसको हम फाइटोल कहते हैं। इसका फार्मूला है C20H39। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज embedded इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन बाय इट्स टेल। ये अपनी टेल की मदद से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक कोर में इम्बेड हुआ होता है। आगे हम टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल देखते हैं। तो उनमें मेजर टाइप्स है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो आगे उनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन while chlorophyll B is yellow green. Chlorophyll A contain the methyl group. The molecular structure for chlorophyll A is C55H72O5N4Mg. Chlorophyll B molecule contain carbonyl group. The molecular formula for chlorophyll B is C55H70O6N4Mg. मेजर डिफरेंस इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन के दो एटम एक्स्ट्रा हैं और ऑक्सीजन का एक एटम कम है, और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन के दो एटम्स कम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम एक्स्ट्रा है। Chlorophyll A is the most abundant and found in all photosynthetic organisms except photosynthetic bacteria. क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के सिवा हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। और क्लोरोफिल ए के साथ साथ ऑल ग्रीन प्लांट्स में, एम्ब्रोफाइट्स और ग्रीन एल्गी सभी में मौजूद होता है। आगे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो सेकंड पोर्शन है कैरोटीनॉइड्स उसको डिस्कस करते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स। जैसा कि आपको पहले बताया था कि इनका कलर येलो और रेड से ऑरेंज के दरमियान में होता है। दे ऑब्जर्व स्ट्रांगली ब्लू वायलेट रेंज different wavelengths than the chlorophyll observe, so they broaden the spectrum of light that provides energy for photosynthesis. नीचे कुछ कैरोटीनॉइड्स की डायग्राम्स और उनके नेम्स लिखे हुए हैं जिनमें एर्सेलिक, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इस तरह साइक्लोपेंटेन, ये सारे कैरोटीनॉइड्स की टाइप्स में आ जाते हैं। आगे चलते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है। तो कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट्स बिकॉज दे ऑब्जर्व लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए which then initiates the light reaction. It is generally believed that the order of transfer of energy is जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मेन ऑर्डर है वो ये होता है कि कैरोटीनॉइड्स लाइट को ऑब्जर्व करता है, फिर वो उसी लाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल बी को प्रोवाइड करता है और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देती है। इसी तरह ये लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है। सम कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय ऑब्जर्विंग एंड डिसिपेटिंग excessive light energy rather than transferring energy to chlorophyll. कैरोटीनॉइड्स हाई वेवलेंथ हाई रेंज की लाइट्स ऑब्जर्व करते हैं और फिर जितनी क्लोरोफिल को लाइट्स रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह ये क्लोरोफिल को डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं। आगे हम लाइट को देखते हैं। Light is a form of energy called electromagnetic energy or radiation. Light behave as wave as well as sort of particles called photon. Light को photon भी कहा जाता है। The radiations most important to life are the visible light that range from 380 to 750 nanometer in wavelength. जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेंज विजिबल लाइट्स की होती है। It is the sunlight energy that is observed by chlorophyll, converted into chemical energy and drives the photosynthesis process. नॉट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन द लीव इज ऑब्जर्व। यहाँ पे ये एक मेन बात है कि लीव पे जितनी भी लाइट पड़ती है वो सारी ऑब्जर्व नहीं होती। ओनली अबाउट 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीव सर्फेस इज ऑब्जर्व, द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। सिर्फ 1% लाइट होती है जो लीव्स ऑब्जर्व करते हैं, बाकी सारी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि जो लाइट क्लोरोफिल्स या कैरोटीनॉइड ऑब्जर्व करते हैं हम उनको किस तरह देख सकते हैं, किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट
used to measure relative abilities of different pigments to observe different wavelengths of light। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो उसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट इनमें मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन हो रही है। आगे आगे ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो ठीक है, हमें पता चल गया कि वो उससे हम रिलेटिव एबिलिटीज को मेजर कर सकते हैं, जो लाइट ऑब्जर्व होती है उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन आगे इसकी मजीद दो टाइप्स हैं, वो जो हम मेजर कर रहे हैं उनको ग्राफ्स की मदद से शो करना कि किस तरह कौन सी लाइट कौन सी रेंज में कितनी ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, किस रेंज में ऑब्जॉर्प्शन कम हो रही है, किस रेंज में ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। तो उसको डिस्कस करने के लिए आगे ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम of the pigment absorption spectrum for chlorophyll indicates that absorption is maximum in blue and red part of the spectrum। जैसे कि पहले भी आपको वो पिछली डायग्राम में दिखाया गया था कि ब्लू लाइट और रेड पार्ट ऑफ लाइट में absorption ज्यादा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो पीक है वो 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर में रेंज ज्यादा है, absorption ज्यादा हो रही है। Absorption peaks of carotenoids are different from those of chlorophyll। जो carotenoids और chlorophyll है उनकी जो ऑब्जॉर्प्शन पीक्स हैं वो दोनों हमें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, क्योंकि कैरोटाइड्स हाई वेवलेंथ हाई रेंज वाली लाइट्स को ऑब्जॉर्व करता है और क्लोरोफिल लो। तो इनमें ये एक डिफरेंस आ रहा है। आगे एक्शन स्पेक्ट्रम। डिफरेंट वेवलेंथ्स आर only differently observed by photosynthetic pigments but are also differently affected in photosynthesis। Graph showing relative effectiveness of different wavelengths of light in driving photosynthesis is called एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हैं कि ब्लू और रेड इस पोर्शन में ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन बाय illuminating plant with light of different wavelengths then estimating relative कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन और ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम एक्शन स्पेक्ट्रम के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो रिलीज और कंजप्शन है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। The first action spectrum was obtained by German biologist T. W. Eagleman in 1883। He worked on Spirogera। आगे हम देखते हैं कि इस पूरी टॉपिक में हमें क्या सीखने को मिला, उसकी एक समरी डिस्कस करते हैं कि photosynthesis pigments are the molecules responsible for observing electromagnetic radiation, then transferring the energy of the observed photons to the reaction center and for photochemical conversion in the photosynthetic system of organism capable of photosynthesis। लाइट को ऑब्जर्व करना और उसको रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफर करके उस फोटोकेमिकल कन्वर्जन को इतना इन द फोटोसिंथेसिस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना और फिर उस ऑर्गेनिज्म को कैपेबल करना कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। Photosynthetic pigments, chlorophyll and carotenoids both play an important role in observing and transferring of light energy necessary for photosynthesis, and we can observe that rate of reaction with the help of spectrophotometer through absorption and action spectrum। लाइट फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और हम उस ऑब्जॉर्प्शन और ट्रांसफरेशन को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उनमें भी आगे हम उसको उसकी रेंज देखना चाहें, उसके ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मिनिमम देखना चाहें तो उसके लिए हम ऑब्जॉर्प्शन एंड एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम इनको यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट आवर today's lecture।